Yes, सर Janvi. मतलब हम लोग SVNIT से है, मैं और सुमन, हम लोग अभी के इंटीग्रेटेड MSc के फाइनल ईयर में हैं। तो Mhm. हम लोग मतलब हम लोगों को अलग अलग जगह ऑन कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट हुआ है मैनेजमेंट फील्ड में। लेकिन हम लोगों को थर्ड ईयर में ऐसे पता चला सीनियर से इंटरेक्ट करते कि नेशन विद नमो आ रही है, नेशन विद नमो और 2-3 ऐसे पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही है। तो Mhm. हम लोगों को तब से हम लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि क्या है पॉलिटिकल कंसल्टिंग, क्योंकि कॉलेज में इतना अवेयरनेस उस चीज से रिलेटेड तो नहीं है। सब वो कोडिंग वाले हैं या फिर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे ही जो जनरल वाले हैं वही जॉब प्रोफाइल सर्च करते हैं ज्यादा। तो हम लोगों ने तब से वो सर्च करना स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने फोर्थ ईयर के समर टाइम के ऐसे हम लोगों ने कुछ फर्म्स में काम किया है, जिसके थ्रू हम लोगों ने बूथ मैनेजमेंट ऐसा करके हरियाणा और झारखंड का थोड़ा बहुत हम लोगों ने काम किया है। तो सर हम लोगों को मतलब हम लोगों ने फिर क्या किया, ये काम होने के बाद हम लोगों ने ये सर्च कर मतलब ये रीच करने का ट्राई किया कि जो जानी पहचानी फिल्म्स है ना, जो बड़ी बड़ी आईपैक हो गई वैसा कुछ, उस पे हम लोगों ने वो मेल करना, उनके HR को कांटेक्ट करना वैसे स्टार्ट किया, पहले कनेक्शंस बनाते हुए लिंक्डइन पे और इन सब पे। तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने बहुत बार अप्लाई किया, बहुत बार इन द सेंस अलग अलग चीजों में हम लोग ट्राई करते रहे कि एक बार तो एक्सपीरियंस आ जाए ऐसे आईपैक से या फिर ऐसे। नेशन विद नमक पे हम लोगों ने बात किया है। हम लोगों का अभी ऐसा गोल है कि गुजरात या फिर राजस्थान, क्योंकि SVNIT सूरत वाला है हम लोगों का, तो गुजरात या फिर राजस्थान के लिए हम लोगों को काम करना है। तो Okay. उस वो उन लोगों को कैसे अप्रोच करें और कौन सी कंपनीज अच्छी होगी तो। Okay. All right. So actually, this field is growing quite at a very rapid rate, and as you are sharing that in your third year, these companies like Nation with Namo came to your campus. Similar is the story, not just with your campus, but even these companies like political consulting companies today are hiring good talent from IITs, IIMs, other management colleges, NID, NIT, all engineering as well as non-engineer, then Tata Institute of Social Sciences, TIS. Political consulting companies are hiring good talent from these companies. So this is actually I would say a very beginning of the career option, because political consulting in India is very new as of now. It's hardly like 10, 12 years of a duration where this overall consulting in politics has taken some kind of shape, which if you see in any industry, like let's say automobile industry, or you see like fashion industry or any other, there are different industries, manufacturing industry. So 12 to 15 years is a very short span of time, right? So that's why I'm saying that this field is still in its very initial stages, very nascent stages, and there is a long way to go. Now, since you are thinking of applying or getting experience, so one thing I would suggest to you is that just don't see, from the perspective, if you are considering this field, so initially you should spend time that the opportunities, the scope, and your trajectory, because like right now you are in your uh, starting of your career, and if you pick this field as a career option, let's say which is what like you are right now trying, as I could sense, so you will be investing at least 40 to 50 years in this field, or even at the worst 15 to 20 years, because that's what a career means, right? It's not about doing one internship or doing just a short stint of job for 2 to 3 years would make much sense. If you are here, I would suggest learn and think from a horizon of 15, 20 years, at least 30, 40 years, that you'll be here and you'll be working. Now, with that mindset, if you are here, so one thing you should know that
this field right now, what are the good things about political consulting? And what are the bad things about this political consulting? Let us understand both of these. The good things about political consulting is, in India, especially, I would say, uh, that, there is uh, professionalism in politics is today at a very minimalistic stage. Even if you look at the national parties, the regional parties, in those parties as well, professionalism is largely at the top leadership stage. Okay. Like Nation with Namo, IPAC, Showtime Consulting. There are other companies as well which are working. So majorly those companies are working with the top leadership. But is it that only top leaders require, professional services in their elections? Are those the only people who are spending, huge money for their campaigns? It's not like that. Even individual candidates who are contesting the elections, be it at any level, be it MP level, be it MLA level, or be it at local levels, they are also spending huge ticket size in their, campaigns. And what is the idea? The idea is to win the election. Now, whom are they giving this money to? Okay. So amongst there are campaigns, and then there are professionals who are managing these campaigns. So around 20 to 25, 30% of the expenditure that is going happening in the campaign, around 30% of the expenditure is happening around human resources. That I am saying at a very conservative. So when 30% of the expenditure is happening around human resource, human talent, so everybody is looking to hire somebody who has very good understanding on how to design political campaigns, how to execute elections. Because if suppose I am spending 1 crore money for my election, I would want somebody to manage that money well, that it is spent, I get good ROI on the money spent, right? And I will not mind spending at least 4 to 5 lakhs on a human talent. I'm not talking about the campaign and other stuffs. I'm just talking about the human talent who would assure me that if I be part of your campaign, it will add a significant value in the campaign. I would like to have that person in my team. Okay. And this particular opportunity that I'm talking to you, it is not at the top leadership stage. It is available in every district of India, wherever you are staying. Okay. At least in any district you consider, at least there are, 300 to 400 serious politicians staying in that particular district if you consider all the tiers of election, the national MP election, MLA election, councillor election, local body elections. And why I am considering all the elections? Because even in the local elections also, the money spent is not less than 50 lakh rupees. So all of these people are spending money, and all of these people are looking for good talent to work with them. Now, the top few companies whom we listen to, they are not going to come and work with individuals. It's always, locally available talent who is going to work with them. And that's where I'm sharing with you that given there is a huge lack of professionals in this field is going to see at least a rise for next 20, 30 years. If you just talk about US, United States of America, political consulting is a 70 years old field in USA. Do you know that? Yes, sir. Yes, sir. So just imagine, since last 70 years, it has been structured. When I say it's a professional, it's a known industry, what does it mean? It means that 70 years ago,
politicians knew that they had to hire professionals for their elections, and they used to budget for these professionals who would come into their campaigns and pay money to them. And for last 50 years, there are associations which are in political consulting domain, which are running in USA. But in India, if you just look at this story, it's like hardly 10, 12 years. There aren't any associations as of now. So all of this is going to happen in due course of time. And even 30 years from now, somebody who's contesting the election would like to have a very good talent in his team to manage his money. So that's where you can consider, if you are considering this field as from a professional perspective, you should know all of this. Now, what as a individual, what should you know in order to get maximum returns from this field? Okay, the first aspect was how overall this industry is going to shape. Right now, this is not even an industry, it's a unstructured space. Now, how are you going to shape your talent in order to be, promising in this field? So that will happen if you should focus on enhancing your skills as professionals around what is political consulting. What are, the different parameters of elections, election campaign, political campaign, which a politician should do in order to win his election. Okay, you should work on getting this talent. It's a science. People are contesting elections for last 400, 500, 600 years. All through the world, people are going to vote. And out of those votes, the one who is getting majority of the votes is elected. So there are a lot of literature which is available. Right now, the companies are coming to you because you are from a good college. But if you don't, add on to this with your knowledge, then it will not going to last. And somebody who is actually acquiring knowledge in this field, there is exponential growth path available. Okay. भास्कर जी, So, सुशांत जी आप हिंदी लैंग्वेज देख लीजिएगा ना। हाँ, सुशांत जी मैसेज किए हैं, देख लीजिए ना, वो हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, देख लेते हैं, ठीक है। सुशांत जी का मैसेज है। ओके, तो मैं ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले एक तो आई हैव ऑल्सो डिजाइन्ड अ प्रोग्राम, पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम, which is actually that's where it is structured, that how do you learn about the science of political campaigns. So definitely join that program. You would learn about how do you design campaigns, right from research to goal setting to voter targeting to speech writing, then designing the campaigns, and the last step as well. So that is number one. There are also books available. In my videos also, I have added links in the video description. So you should read those as well to enhance your knowledge. Okay. ओके, अब सुशांत जी का भी मैसेज देख लेते हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रखेंगे सेशन, सो दैट सारे लोगों के लिए इजी का हिंदी में प्रकट होता है, इसलिए जरूरी है थोड़ा बहुत। ठीक है, और लोगों का भी मैंने हैंड रेज देखा, सो आप लोग भी अपने क्वेश्चन पूछो। हाँ, आई थिंक चंदन जी आपने भी हैंड रेज किया था, सुमेर का भी हैंड रेज बाय मिस्टेक हुआ था। ठीक है, सारांश आप कुछ पूछना चाहते हो, पूछो प्लीज। Yeah, Bhaskar, I wanted to know what is like we have a few examples of some political consultants who worked for a couple of years in this industry, and after let's say 8 or 10 years they decided to shift into being a full-fledged or full-time politician. One of the example which comes at the top of my mind is Prashant Kishore.
like now he has his own political party और वो अभी बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं. So and I'm sure ऐसे और भी एग्जांपल्स होंगे which जो इतने सोशल मीडिया पे इतने वायरल नहीं हुए हैं, बट प्रशांत किशोर because I have been following him since 2014 तो मुझे पता था. So how do you look at this transition? और इसमें भी I want to ask 3 different things. कितना स्मूथ ये ट्रांजिशन होगा कि क्या पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है are they open to welcome a political consultant? Point number 1. Point number 2 कि बिकॉज वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने एक कैंपेन रन किया है और उसने डिफरेंट कैंपेन्स देखे हैं, तो क्या वो ऑब्वियसली वो स्किल सेट्स कितना हेल्प करती होंगी उसको खुद का कैंपेन रन करने में? और माय थर्ड क्वेश्चन और थर्ड सब क्वेश्चन इज कि क्या ऐसे चैलेंजेस होते होंगे जो वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने जब वो दूसरे के कैंपेन्स मैनेज कर रहा था तब नहीं देखे, बट जब खुद पे इलेक्शन फाइट करने की बात आई तो उसने वो चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए? ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ. एसेंशियली आप समझना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग से एज अ पॉलिटिशियन जो ट्रांजिशन है वो कितना मीनिंगफुल है, राइट? मीनिंगफुल है फॉर द पर्सन और कितना स्मूथ हो सकता है और व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच विल कम? अच्छा, हाँ, कितना स्मूथ हो सकता है. ठीक है, तो देखो आप एक बात समझो, यहाँ पे 2 चीजें हैं. यहाँ पे सबसे पहले पॉलिटिकल कंसल्टिंग और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जब आप एज अ प्रोफेशनल इस फील्ड में आते हो तो आपको कोई पैसे देता है और बदले में आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका इलेक्शन प्रोफेशनली मैनेज करो. जब प्रोफेशनली मैनेज करने की बात करते हैं इसका मतलब है कि आप उसके एक्सपर्ट हो और आपको पता है कैंपेन्स कैसे डिजाइन करने हैं, कैंपेन्स में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप उन चीजों को पहले से जानते हो, उस सिचुएशंस को फोरसी करो और उसके अराउंड स्ट्रक्चर्स बनाओ सो दैट कि वो जो ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं उस समय, उन ब्रेकडाउन्स को आप मैनेज करो. इसके लिए कोई आपको एज एन एक्सपर्ट हायर करता है और उसके लिए आपको पे करता है, राइट? ठीक है. अब वहां पे आप जितने अच्छे से अपने इस काम को कर पाते हो, आप उतना आपकी वैल्यू बढ़ती है, उतना आप एज अ एस स्ट्रैटेजिस्ट, एज अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट कंसल्टेंट कंसिडर किए जाते हो. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट. अब दूसरा एस्पेक्ट है कि वहां से एज अ पॉलिटिशियन जो ट्रांजिशन है वो कितना स्मूथ है. तो देखो अभी क्या है कि पॉलिटिशियन और स्ट्रैटेजिस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है. एक पॉलिटिशियन जो होता है, पॉलिटिशियन का खुद का पैसा लग रहा होता है इलेक्शन में, खुद का समय लग रहा होता है इलेक्शन में. एज अ स्ट्रैटेजिस्ट या एज अ प्रोफेशनल आप जब आते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए काम करते हो, लेकिन वहां पे आपका सारा चीज स्टेक पे नहीं लग रहा है. ओके, अगर वो चीज फेल भी हुआ तो प्रोफेशनली यू वुड लाइक थिंग्स टू हैपन, बट you are not having your skin in the game as much as the politician is having. Yeah. ठीक है, पॉलिटिशियन का तो समझो कि मतलब आगे का 5 साल जो भी वो प्लान कर रहा था, ट्राई कर रहा था, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिस्ट उसके कैंपेन का एक एस पार्ट हो सकता है. ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा जो शिफ्ट है वो तो जब आप पॉलिटिशियन बनते हो तो वो आपके माइंडसेट में होता है. जो भी एक पॉलिटिशियन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है वो हार्डली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन 2-3-4 घंटे सो रहा होता है. उसको नेचुरली ही नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसका सारा कुछ स्टेक पे लगा हुआ है. एक स्ट्रैटेजिस्ट के साथ वो सिचुएशन नहीं है. तो एक एज ए स्ट्रैटेजिस्ट आप अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो कितना स्मूथ ट्रांजिशन है. सो एक्सटर्नल से ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इंटरनल एज अ स्ट्रैटेजिस्ट खुद के लेवल पे है कि आपके पास क्या वो सारे रिसोर्सेज हैं कि आप इलेक्शन में आ पाओ. और रिसोर्सेज से भी ज्यादा बड़ा चीज होता है कि क्या आपका वो माइंडसेट है. पॉलिटिशियन आप क्यों बनते हो? आप पॉलिटिशियन बनते हो क्योंकि आप अपने लोगों की मदद करना चाहते हो. यू वांट टू हेल्प योर पीपल, यू वांट टू अपलिफ्ट देयर सोशल वेलबीइंग, देयर
current situation, उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यू वांट टू हेल्प देम गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग, you know, it's way deeper than that. So first of all, you know, anyone can be a politician and everyone should be, whosoever is in this space. अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट भी हो तो भी मैं सजेस्ट करता हूं हर किसी को कि आपको एक चुनाव खुद से तो लड़ना ही चाहिए, बी दैट अ लोकल बॉडी इलेक्शन. उससे जो आपका क्या होता है ना, एक प्रिंसिपल एजेंट कॉन्सेप्ट होता है. आप सोचते हो कि आपका काम कोई और कर दे, वो काम कभी भी नहीं होता है. जो भी काम आप चाहते हो 100% हो जाए, उसमें आप जिसमें आप खुद से इन्वॉल्व हो, उसी की आप एक लेवल पे गारंटी ले सकते हो. वो भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली एक ज्यादा चांसेस है उसके होने का. तो जस्ट आप किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसको लगे कि वो किसी को हायर कर लेगा और इलेक्शन जीत जाएगा, तो वो एक रॉन्ग नोशन है. पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता है, और जीतने के लिए आपके पास वो माइंडसेट होना चाहिए, और वो है या नहीं है ये चीज डेफिनेटली तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद उस रेस में हो. तो ऐसा नहीं है कि आपको एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, ये समझने के लिए आपके आरडब्ल्यूए के भी इलेक्शन है, लोकल लेवल इलेक्शंस हैं, एसोसिएशंस के इलेक्शन है, आप किसी एसोसिएशन में है उसके इलेक्शंस है, कई सारे इलेक्शन हो रहे होते हैं. और जो साइंस है कैंपेन की वो सब में सेम होती है. जहां भी वोटिंग होती है वहां कैंपेन की सारी साइंस सेम होती है. आपको अपने वोटर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना होता है कि आप उनके बेस्ट चॉइस बनो, उनके अराउंड कैंपेन्स डिजाइन करने होते हैं, इलेक्शन के समय इंश्योर करना होता है कि आपके वोटर्स जाके वोट दें. तो ये सारा साइंस सेम होता है. तो डेफिनेटली हर किसी को जो भी इस फील्ड में सीरियस है उसको अपने लिए भी इलेक्शन लड़ना ही चाहिए. तो भास्कर, आपके पास आई हैड वन एग्जांपल प्रशांत किशोर, बट आपके पास कोई और एग्जांपल है जिन लोगों को आपने देखा हो या बात की हो जिन्होंने ये ट्रांजिशन किया हो, और उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए फिर इस ट्रांजिशन के कई बाद? सारे हैं, मतलब कुछ हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे घनश्याम तिवारी हैं, वो अभी समाजवादी पार्टी में स्पोक्स पर्सन है और लोकसभा कैंडिडेट भी रह चुके हैं. घनश्याम तिवारी इनिशियली खुद भी स्ट्रेटेजिस्ट थे. एक टाइम पे वो जेडीयू में काम कर रहे थे, अभी वो समाजवादी पार्टी में एज अ पॉलिटिशियन ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ एंड आल्सो अ लोकसभा कैंडिडेट. तो घनश्याम तिवारी है. फिर से आई नो अ कपल ऑफ पीपल जैसे who are planning to contest. They are not जैसे विवेक बागड़ी हैं, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं अपने रीजन में. आई नो हिम, ही इज रनिंग अ पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी इन गुड़गांव, लीडटेक के नाम से. सो ही वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन. आई नो हिम, ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, सो ही इज आल्सो देयर. देन देयर आर एक और है वो सम वशिष्ठ करके उसका नाम है. सो ही इज वो ग्राम प्रधान है अपने यहाँ पे, और वो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट भी वर्क कर रहा है. थैंक्स. राम सर चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. और किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन पूछिए. सुशांत, बहुत अच्छी बात है आप चुनाव लड़ना चाहते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने सर जैसे 1 ईयर के लिए तो हमने सिर्फ रिसर्च की थी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पे. यूएसए का बहुत पुराना, इवन इंडिया में चेक के टाइम से, सीएजी के टाइम से जो स्टार्ट हुआ, मोदी जी के टाइम से, वहां से लेके आज तक अभी 32 कंपनीज है जो पैन इंडिया थोड़ा बहुत वर्क कर रही है उनके बारे में, एंड वो सब किया. इवन हरियाणा झारखंड में वर्क भी किया. लेकिन सर आप जो बोलते हो ना कि लोकल लीडर्स के साथ हमें वर्क करना चाहिए, तो वहां पे सर 2 चीजें जो मैंने फेस की है ना,
वो ये फर्स्ट तो ये आता है कि लाइक वो अपना जान पहचान का होता है, तो उनसे पैसा मांगना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सरपंच हो गया, एमएलए हो गया, या तो अंकल होते हैं या फिर जान पहचान के होते हैं, तो उनसे पैसे डिमांड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड थिंग ये कि ये होता है ना कि लाइक जैसे अब हमारे घर में ही कोई डॉक्टर है तो फिर भी हम उनसे सलाह नहीं लेते हैं, होता है कि किसी और से ले, क्योंकि वो होता है ना अपने घर वालों से वैसा सीन सर उस चीज को सर कैसे फेस करें? ओके, सो देखो, सबसे पहले तो तुरंत में पैसे मांगना डेफिनेटली वो एक सही आइडिया नहीं है। रीजन बीइंग कि अ, ये जो फील्ड है पॉलिटिकल कंसल्टिंग, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये जो फील्ड है ये एक बुटीक फील्ड है। बुटीक कंसल्टिंग है। बुटीक का ये मतलब होता है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है कि आप किसी मॉल में गए, एक कपड़ा खरीदे और उसका एक सर्टेन प्राइस टैग लगा हुआ है, उस पर आपने खरीद लिया और लेके आ गए घर। ये वैसा फील्ड नहीं है। ये वैसा फील्ड है जहां पे आप जैसे रियल एस्टेट समझ सकते हो। रियल एस्टेट आप कहीं खरीदने जाते हो तो किसी एक ब्रोकर के साथ आपका इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट बनने के बाद उसको आप ब्रोकरेज देते हो। जब कोई डील आपकी फाइनल वो करवाता है, जब तक वो आपकी डील फाइनल नहीं करवाता है तब तक वो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाते रहता है, लेकिन उसके लिए आप उसको पैसे नहीं देते हो। उस पीरियड में आप ये देखते हो कि हाँ भाई ठीक है, इसका इसका नॉलेज है, ये इस फील्ड में काम कर रहा है, इसके पास ऑप्शंस हैं, राइट। तो सेम यहाँ पे भी है। और एक बार जब कोई भी एक आप किसी, अब कभी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो किसी एक ब्रोकर के थ्रू, तो जनरली वो बंदा आगे भी बार बार उसी ब्रोकर के साथ प्रॉपर्टी खरीदता है, क्योंकि वो एक बार ट्रस्ट बन जाता है। तो हम हमेशा उन्हीं लोगों के साथ पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा हमें ज्यादा अच्छा दे रहा है, कम अच्छा दे रहा है, उससे ज्यादा एक ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा मैटर करने लगता है। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा, जो मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है, कि यूजुअली एक बहुत बड़ा रीजन है कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट लोगों को फेल होने का, कि वो सीधे जाके पैसे मांग लेते हैं, इसलिए उनको काम भी नहीं मिलता है, पैसे भी नहीं मिलते हैं। आप अपना टैलेंट शो करो, आप जाओ किसी की हेल्प करो, लोकल लेवल पे हेल्प करो, पैसे मत मांगो। कब तक करो हेल्प, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप कब तक हेल्प करो? जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लग रहा है। आप समय दो। जैसे किसी को बायोडाटा बनाना है, किसी को अब उसके यहाँ विजिटर्स आ रहे हैं, तो विजिटर्स को वो कैसे मैनेज करे? वो खुद अपना इलेक्शन प्लान कर रहा है, तो उसके लिए जो एक लेट्स से रूल्स का रिसर्च है कि क्या रूल्स होने चाहिए इलेक्शन के, कब कब क्या क्या करना है। अब इन चीजों में आपका खुद का पैसा तो नहीं लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है, डेफिनेटली पैसा नहीं लग रहा है। तो जहां आपका टाइम लग रहा है, टाइम लगाओ। उससे क्या होगा? आपका खुद का भी नॉलेज बढ़ेगा, नंबर वन। और नंबर टू, आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट कैसे बनते हो? आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट बनते हो अगर उस फील्ड के लेट से 100-200 जो जिनकी भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको उसका नॉलेज आने लगेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, जाओ उनसे मिलो, पूछो कि अच्छा चाचा जी आप जैसे प्लान कर रहे हैं तो हम आपकी क्या मदद करें, पूछो या देखो, ऑब्जर्व करो। आप उनको खुद से सजेस्ट करो कि आपका उनका सोशल मीडिया ऑब्जर्व करो। दूसरों का आप उनको गाइड करो कि देखो आप इसके जगह ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसमें पैसे कहाँ मांगने की बात आई? पैसे तो नहीं आई मांगने की। यस सर। सर एक्चुअली लाइक आपने भी सीआर पाटिल सर के लिए वर्क किया, हमने स्टार्टिंग में 1 साल यही किया था। यहाँ तो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी थी, कैंपेन्स स्टडी किए थे, इलेक्शंस, और सूरत, लाइक अभी हम लोग सूरत में रह रहे हैं, कॉर्पोरेट इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उनके लिए वॉलेंटियर्स ऐसे उनके साथ वर्क किया था, सबके कैंपेन्स देखे थे, सबसे बात किया था 1 साल तक। आफ्टर दैट लाइक हरियाणा में हमने 1-2 लोगों को अप्रोच किया था, तो उन्होंने बोला कि लाइक हमारे लिए वर्क करो किसी और फर्म के थ्रू। तो सर वैसा ही हमने किया था सर, जैसा आपने सर कहा है। इवन हमने आपके जो वीडियोस देखे हैं वो सर, लेकिन सर इन फ्यूचर के लिए सर 1-2 चीज सर हमने सर और नोटिस की, लाइक सर जो बड़े फर्म्स है सर वो बहुत सारे पॉलिटिकल एक कंसल्ट। सेकंड, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, मुझे अपना एक बार आंसर कंप्लीट कर लेने दो। ओ सर सॉरी। ठीक है। सो देखो क्या है ना, अभी चूंकि आप लर्निंग स्टेज में हो, ठीक है, मैं बार बार
जो भी न्यू कमर्स हैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, आप देखो क्या प्रॉब्लम क्या आती है, आप किसी एक पॉलिटिशियन के साथ एसोसिएट होते हो और वहीं पे वॉलंटियर करते रहते हो, ठीक है। आपको क्या समझना है, आप पॉलिटिक्स में उस पार्टी के लिए वॉलंटियर करने नहीं आए हो अभी आप एज अ स्ट्रेटेजिस्ट अपना करियर बनाने आए हो, ठीक है। डेफिनेटली उसमें शुरू में आपको सामने वाले को फ्री में सर्विस देनी होगी, ये एक फैक्ट बात है। फ्री में सर्विस का क्या मतलब है, आप अपना टाइम दो, जहां पैसे लग रहे हैं वो पैसा मत खर्च करो आप, इन द सेंस जाने आने का डेफिनेटली आप वहां ऑफिस जा रहे हो तो आपका कन्वेयंस लग रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन मान लो कि किसी का सोशल मीडिया मैनेज करना है तो वहां पे आप अपना बजट मत स्पेंड करो, उसको सजेशन दो, अगर उसको सही लगेगा तो वो खुद ही कहेगा कि आप मैनेज कर दो मेरा। जब वो बोलेगा आप मैनेज करो तो आप यही तो चाह रहे हो कि वो बोले, फिर आप उसको बताना कि कैसे क्या मैनेज होगा। और दूसरी चीज ये कि आप अपने, मैं लोकल बार बार क्यों बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं कि आप मान लो कि सूरत में रह रहे हो, हरियाणा में जाके किसी के लिए वॉलंटियर करने आप जा रहे हो तो कितनी बार जाओगे हरियाणा, लेकिन जब सूरत में हो, सूरत में आप लिस्ट निकाल दो, वहां हो सकता है जैसे बीजेपी से सीआर पाटिल है, अभी तो आप सिर्फ हेल्प ही करने जा रहे हो ना, तो हेल्प ही करने जा रहे हो तो सीआर पाटिल है, सीआर पाटिल के ऑफिस में जाओ, पूछो सर कोई मैं क्या कर सकता हूँ, वो बताएंगे तो ठीक है। वहीं पे आपके कांग्रेस के भी पॉलिटिशियन होंगे, लोकल लेवल के बीजेपी के भी काउंसलर लेवल के पॉलिटिशियन होंगे, मेयर लेवल पे होंगे, लोकल इलेक्शन वाले होंगे, या एस्पिरेंट्स होंगे जो अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उन सब से मिलो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक एरिया में 20-30 लोगों के साथ अगर आप रेगुलरली मिल रहे हो और उनकी जो प्रॉब्लम है वो अपना सॉल्व कर दो आप, खत्म बात, पैसे मत खर्च करो। उस प्रोसेस में क्या होगा, 20, अभी एक आदमी आपको अपना प्रॉब्लम बता रहा था, जब 20 आदमी प्रॉब्लम बताएगा तो आपके पास 20 प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी लर्निंग 20 टाइम्स फास्टर हो जाएगी और उनके साथ इस प्रोसेस में रिलेशन भी आपका बनेगा। कल के डेट में भाई जब वो पैसे खर्च करेगा तभी तो आपको देगा, लेकिन अब यस आप ऐसा अगर आप बहुत दूर दूर जाके लोगों के लिए वॉलंटियरिंग करने लगोगे कि आप सूरत में रह रहे हो, कभी आप राजकोट जा रहे हो, कभी आप कहीं और जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो, तो वो वायबल नहीं है।